Hello, welcome to all of you. Today we learn NCERT History Class 7th Lesson number 3 The Delhi Sultans Part 1. From garrison towns to empire, the expansion of Delhi Sultanate. Important terms: hinterland, the land adjacent to a city or port that supply it with goods and services. गैरिसन शहर से साम्राज्य तक. भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे. 2. गैरिसन टाउन, फोर्ट फील्ड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स. मीन्स गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं. देन मुमलक डायनेस्टी, अर्ली तुर्किश रूलर्स कुतुबुद्दीन ऐबक, देन शमसुद्दीन इल्तुतमिश, देन रजिया, and then Ghiyasuddin Balban. We can see Mumlak dynasty 1206 and 1290. Rajia Sultan. Rajia became the Sultan in 1236. रजिया 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी. She was the daughter of इल्तुतमिश. वह इल्तुतमिश की डॉटर थी. But most of the people could not accept a woman as a ruler. परंतु एक रानी को शासक के रूप में दरबारी जन मान्यता नहीं दे पा रहे थे. As a result, she could remain the ruler only for about 4 years and was removed from the throne in 1240. नतीजा सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया. Women who became rulers. रुद्रम्मा देवी belonged to the Kaktiya dynasty of Warangal. She avoided gender discrimination by changing her name on inscriptions and pretended to be a man. मीन्स रुद्रम्मा देवी जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, उस वंश की रानी थी. उसने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था. दिदा, another queen who ruled Kashmir during 980-1003 was addressed as दिदा इंस्टेड ऑफ दीदी. एक और रानी थी, उसको दिदा कहते थे. दिदा यानी उनका नाम बहन, एल्डर बहन से निकला है, जो कश्मीर के लोगों से दिदा कहते हैं. अर्ली पेस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट was limited to fortified towns. In 13th century, the control of Delhi Sultanate was limited to fortified towns occupied by garrisons. मतलब 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो. शहरों से संबंध लेकिन उनसे भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन आवश्यक सामग्री, रसद
आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। The Sultan did not control the interland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, or plunders of supplies. Controlling garrison towns in distant regions from Delhi was difficult. दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। मंगोल invasion from Afghanistan and rebellion by governors placed a big challenge in front of Delhi Sultanate. शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। Number of rebellion occurred at this point of time. The Sultanate barely survived these challenges. इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। How did the expansion of Delhi Sultanate take place? Expansion of Delhi Sultanate took place during the reign of Gayasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. इसका विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। Internal frontier aimed at consolidating the interland of the garrison town. Forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab. Hunter-gatherers and pastoralists were expelled from their land. Land was brought under cultivation. New fortresses and towns were established. सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों का साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। एक्सटर्नल फ्रंटियर military expedition into southern India started under Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. Sultanate armies captured elephants, horses, shawls, precious metals hits. मतलब दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मुहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। If you like my video, please subscribe, like and share. Thanks.